Welcome dear students. Welcome again to online lecture series. I'm your teacher Muhammad Wakar, and it's another lecture in the row about the play Progress. That is one act play. It's written by John Grier Irwin. So before going to start our today's lecture, I would like to revise the previous lecture that we had on the same play. So, in the previous lecture, we discussed these few important points. The first one is Professor Corey is busy with his experiment. So, we can see that he is sitting in his room, in his study room, and he's engaged in his experiment. And at the same time, after a while, after Hannah enters the room, and then Mrs. Melton enters, who is aged 43, and she's dressed in black uh, because of the two reasons. She wore black dress because of the two reasons. First, because she is widow, and the second because it's the death anniversary of her son. So that's why she's also mourning, and she's in great sadness for her son as well. And then Professor Corey and Mrs. Meldon, they talk about uh, professor's new experiment and invention. uh, and we can also see that Professor Corey is doing all this because in order to he wants to gain fame and fortune. So he's quite a materialistic person. He does not care about relationships that much. He did not go to pick up Mrs. Melton from the station, but he was engaged in his experiment, and his scientific experiment seems to be more important to him than any other human being and then any other relationship in his life. And then Corey plans to offer this experiment and his invention to government. He says that I will offer this experiment first to British government, and if they do not pay the price that I ask them, I'll offer it to someone else, any other government. So then there is another character introduced. We saw his name was Gage, and he was a gardener who brought the wreath for War Memorial, and it's anniversary. So Mrs. Melton asked Gage to bring wreath for the War Memorial. And then we can also see Professor Corey's view about women, that he said that women, they lack concentration and devotion, and that is why they cannot become great scientists and scholars. All right, so students, that was the previous lecture. So going on to today's lecture. So here we go. Mrs. Meldon to her brother. अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा था कि पहले मिसेस मेल्टन जब when when Hannah brought those flowers, the wreath, तो मिसेस मेल्टन ने उसका शुक्रिया अदा किया. थैंक यू हैना, आई कीप द फ्लावर्स. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. हैना जो है वो चली जाती हैं, एग्जिट हैना. देन मिसेस मेल्टन टू हर ब्रदर, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू हर ब्रदर, यानी अब हैना चली गई तो अपने भाई से मुहातिब होकर वो बात करिए. दे आर वेरी ब्यूटीफुल आरंट दे हेनरी, कि ये फूल बहुत खूबसूरत हैं. क्या ये वाकई यानी क्या खूबसूरत हैं हेनरी. सो कोरी, ओ यस, क्वाइट नाइस, शार्लेट, दिस इन्वेंशन ऑफ माइन. ओ हाँ, ये तो बहुत प्यारे हैं शार्लेट. लेकिन देखें, अब वो फिर बात को अपनी इन्वेंशन की तरफ लेके आता है. उसने ये कमेंट तो कर लिया, लेकिन बात वो दिस इन्वेंशन ऑफ माइन. सो आगे आप डॉट देख सकते हैं, डॉट, 3 डॉट्स हैं. अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई, वो अभी बात जारी रख रहा था कि ये मेरी जो इजाद है. तो फिर मिसेस मेल्टन ने कुछ और बात शुरू कर दी, उसकी बात काट दी. विल यू हैव सम मोर टी. अब मिसेस मेल्टन इतनी उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंटिफिक बात कर रहे हैं. मिसेस मेल्टन अपने पेन में है, दुख में है, और वो उसके दुख को नहीं समझ रहा. वो उसको ह्यूमन बीइंग्स का कोई इतना ख्याल नहीं है. वो फिर अपने एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है. तो यहाँ पे आप इस तरह से कैरेक्टर्स को समझ सकते हैं, जो डायलॉग जो बोल रहे हैं. ठीक है. विल यू हैव सम मोर टी हेनरी, कि क्या तुम और चाय लेना पसंद करोगे हेनरी. कोरी वैगली मोबम अंदाज में कह रहा है. ओ दैन डेफिनेटली यस हाफ अ कप, कहता है कि ज़रूर, मैं आधा आधा कप मुझ मेरे लिए और डालो. He hands the cup to her, and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered. ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये राइटर हमें बता रहा है कि he hands the cup to her, वो अपना कप
उसको देता है मिसेस मेल्टन को, एंड शी फिल्स इट, और वो उसको भरती है, यानी चाय उसमें डालती है, एंड रिटर्न्स टू हिम, और उसको वापस करती है, वाइल द फॉलोइंग स्पीचेज अटर्ड, और इसी दौरान में जो दर्ज झेल बातें, स्पीचेज यहाँ इसका मतलब है बातें, अटर्ड बोली जाती हैं। तो ये फॉलोइंग जो डायलॉग है ये इसी दौरान बोला जाता है। वो डायलॉग क्या है? कोरी, आई वाज सेइंग दिस इन्वेंशन ऑफ माइन विल रेवोल्यूशनाइज वॉरफेयर। कोरी कहता है कि आई वाज सेइंग, मैं ये कह रहा था कि मेरी जो इजाद है विल रिवोल्यूशनाइज वॉरफेयर, ये जंग बाजी को, जंग और जदल को, उसमें एक इनकलाब पैदा करेगा, उसको एक जिद्दत देगा। तो किस तरह से रिवोल्यूशनाइज करेगा, रिवोल्यूशन कौन सा आएगा जंग वो जदल में, वॉरफेयर की दुनिया में? तो मिसेस मेल्टन कहती है कि विल इट अबॉलिश वॉरफेयर? तो मिसेस मेल्टन के मुताबिक तो रिवोल्यूशन ये है कि जंग का खात्मा हो। तो क्या कहती है कि क्या ये जंग को तुम जो इन्वेंशन कर रहे हो, क्या ये जंग का खात्मा होगा, यानी जंग को ख़त्म कर देगी, तब तुम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हो? कोरी कहते हैं अबॉलिश वॉर, जंग का खात्मा, यानी अब एक्सक्लेमेशन आगे है तो वो इस अंदाज में कह रहे हैं कि अबॉलिश वॉर, माय डियर शार्लेट डोंट बी चाइल्डिश, कि मेरी प्यारी शार्लेट बचगाना बातें ना करो, यानी तुम क्या कहती हो कि जंग का खात्मा रेवोल्यूशन है, तुम तो बच्चों की तरह बातें कर रही हो। मिसेस मेल्टन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। मिसेस मेल्टन कहती है कि मुझे इस मौजू पे, यानी ये जंग का खात्मा जो है, या तो इस मौजू में मुझे बहुत दिलचस्पी हासिल है। इट सीम्स टू मी मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड हेनरी, और ये मेरे लिए दुनिया में किसी भी और चीज़ से, सीम्स टू मी मोर इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल है, दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, किसी भी और चीज़ से दुनिया में। यू डोंट रियलाइज हाउ डीपली women लाइक मी फील अबाउट दिस, तुम इस बात से लाइलम हो, तुम इस बात का एहसास नहीं करते कि मेरी तरह औरतें, women लाइक मी, मेरी तरह की औरतें कितना ज़्यादा महसूस करती हैं इस चीज़ के बारे में, यानी जंग को लेके और जंग के नताइज को लेके किस तरह से कितनी हसास होती हैं औरतें, तुम इस बात को महसूस नहीं कर सकते। दिस ऑर्गेनाइज बुचरी ऑफ बॉयज़, अब देखें मिसेस मेल्टन के मुताबिक जंग क्या है? वॉर इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बुचरी ऑफ बॉयज़, एक मुनज़्ज़म कत्लेआम है बच्चों का। यानी वो कहती है कि जंग जो है ये कोई भी मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ शुरू करता है तो वो एक माँ के नज़दीक, क्योंकि उसका बेटा जंग में अ, मर मर चुका है, तो उसके नज़दीक तो यही लगेगा उसको कि ये जंग एक मुनज़्ज़म कत्लेआम है बच्चों का। इससे ज़्यादा तो उसको ना सियासत समझ आती है ना कुछ और समझ आती है। तो उसके नज़दीक तो वो कहती है कि जंग एक मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों को मारने का एक बस तरीका है। ठीक है? लुक एट मी, आई हैड अ हस्बैंड एंड अ सन व्हेन द वॉर बिगेन। अब वो मिसेस मेल्टन अपने भाई प्रोफेसर कोरी को कहती है कि मेरी तरफ देखो, आई हैड अ हस्बैंड एंड सन, मेरा एक मेरा शोहर और बेटा था, व्हेन द वॉर बिगेन, जब जंग शुरू हुई थी। आई हैड नीदर व्हेन इट वाज ओवर, और अब मेरा ना ही शोहर बाकी रहा है और ना ही बेटा, जबकि जंग खत्म हो चुकी है। शुरू में दोनों थे, अब एक भी नहीं है। आई एम मोस्ट लोनली वुमन, मैं बहुत तन्हा औरत हूँ, क्रूली लोन, जालिमाना तौर पर तन्हा। Corey, a little annoyed by what seems to him sentimental harping on one string। अब ये राइटर उसकी स्टेट ऑफ माइंड हमें बता रहा है प्रोफेसर कोरी का, कि कोरी जो है वो लिटिल अनॉयड, परेशान है, बाय व्हाट सीम्स टू हिम, जो कि उसको लगता है सेंटिमेंटल, जज्बाती। नहीं वो अब हेनरी, मिसेस मेल्टन जो है वो जज्बाती हो गई है, तो ये प्रोफेसर को जज्बाती लग रहा है। हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग का मतलब मुसलसल एक ही मौजू पे बात करना। तो अब देखिए वो बात को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिसेस मेल्टन फिर उसी जंग के बारे में, उसी अपने बेटे के कत्ल के बारे में बात करती है, उसकी मौत के बारे में। तो एक मुसलसल हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग, मुसलसल एक ही मौजू के ऊपर बात करते हुए उसको सुन रहा है, तो इसलिए प्रोफेसर कोरी तंग आ गया है, अब तंग हो गया थोड़ा सा। हार्पिंग का वैसे मतलब होता है ढोल पीटना, वो जो स्ट्रिंग म्यूजिक में, यानी सेम म्यूजिक आप बार बार सुने तो यू गेट बोर्ड, आप बात को चेंज करना चाहते हैं। सो आई नो ऑफ कोर्स दैट द वॉर हिट यू वेरी बैडली, वो कहता है कि मुझे पता है यकीनन, द वॉर हिट यू बैडली, कि जंग से तुम्हें शदीद दचका लगा है, बुरी तरह से तुम मुतासर हुई हो शार्लेट। व्हाट विद एडी बीइंग किल्ड एंड टॉम टेकिंग हिज डेथ सो बैडली, कि अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि ये तो हमें पता है कि एडी जो है जंग में मारा जाता है, लेकिन जो इसका हस्बैंड है टॉम, वो जंग में नहीं मारा जाता, बल्कि वो uh, यहाँ पे देखें शार्लेट, व्हाट विद एडी बीइंग किल्ड, कि एडी के मरने से, एंड टॉम टेकिंग हिज डेथ सो बैडली, हिज का मतलब यहाँ पे हिज प्रोनाउन यूज हुआ है एडी के लिए। टॉम ने एडी, जो उसके बेटे की डेथ हुई थी, उसको बहुत बुरी तरह से, उसका असर उसके जहन पे हुआ, उसके दिलो दिमाग पे असर हुआ। तो उस सदमे, उस ग्रीफ, उस दुख की वजह से टॉम की डेथ हुई, जो कि इसका हस्बैंड था। तो हस्बैंड जंग में नहीं मारा गया, बल्कि अपने बेटे के दुख की वजह से उसको, उसकी डेथ हुई है। ठीक है? तो वो कहता है कि इस बात को मैं जानता हूँ, मुझे अफसोस भी है इन बातों पे। ठीक है? और फिर कहता है मिसेस मेल्टन,
मिसेस मेल्टन का डायलॉग है, मिसेस मेल्टन, टॉम डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट हेनरी, कि टॉम जो है वो गम की वजह से मरा है, ब्रोकन हार्ट गम की वजह से। तो अब देखें हमें पता चल गया कि टॉम किस तरह से मरता है। दैट मे साउंड सेंटिमेंटल एंड अनसाइंटिफिक टू यू, कि ये बात तुम्हें जज्बाती, सेंटिमेंटल जज्बाती, एंड अनसाइंटिफिक और गैर साइंसी लगेगी, क्योंकि वो तो साइंसी आदमी है ना, साइंटिफिक माइंड रखता है, उसके नज़दीक तो जज्बात एहसासात की कोई इतनी अहमियत, इतनी कदर नहीं है, वो तो फैक्ट्स और फिगर्स की बेस के ऊपर कोई बात करता है, और वो तोलता है हर चीज़ को, वो फील नहीं कर सकता बाकी इंसानों की तरह, वो एक साइंटिस्ट, बिल्कुल साइंटिफिक माइंड वाला है, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम्हारे नज़दीक ये तो गैर साइंसी बात होगी, वो जज्बाती बात होगी कि एक बाप कैसे अपने बेटे की मौत पे मर सकता है, यानी ये तो साइंस में कहीं प्रूव नहीं होता कि बेटा मर जाए और बाप भी उसके गम में मर जाए। ये तो वो लोग समझ सकते हैं जो जज्बात को समझते हैं, एहसासात को समझ सकते हैं, जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझते हैं। तुम्हारे नज़दीक तो ये अभी भी जज्बाती बात है और गैर साइंसी तरह की बात है, ठीक है, बट इट्स ट्रू, लेकिन ये सच है। वो कहती है कि ये सच है। तो स्टूडेंट्स, वी कैन सी कंट्रास्ट बिटवीन टू कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक माइंडसेट रखता है और उसकी सोच साइंटिफिक है, और दूसरा जो है उसकी सेंटिमेंटल है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स को वो अंडरस्टैंड करता है और वो फील कर सकता है दूसरे के पेन को, ठीक है। आई समटाइम्स वंडर व्हाई आई वाज नॉट ग्रांटेड द मर्सी ऑफ डेथ। अब वो कहती है कि मैं बाज़ औक़ात सोचती हूँ, वंडर सोचती हूँ, व्हाई आई वाज नॉट ग्रांटेड, कि मुझे क्यों अता नहीं की गई मर्सी ऑफ डेथ, मौत की रहम, यानी अब मौत की भीख मांग रही है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया में, मेरा हस्बैंड नहीं है, बेटा नहीं है, तो मैं अब ज़िंदा रह के क्या करूँगी, मुझे भी मौत आ जाती, ठीक है। तो मैं नहीं ये समझ पा रही कि मुझे क्यों ज़िंदगी दी गई है, मुझे मौत क्यों अता नहीं हुई। वाई आई शुड बी कंपेल्ड टू लिव ऑन अलोन, कि मुझे क्यों मजबूर किया गया है कि मैं मुसलसल अकेले रहूँ इस दुनिया में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी कैन सम अप दिस पैराग्राफ एज के in this we come to know that how Tom died, and we can also see a contrast between two characters. One has a scientific mind who only cares about facts and figures, and the other is a sentimental one who can feel and understand others' feelings too. All right. Not only she can express her own feelings, but she can also understand others' feelings as well. So Corey, oh come, Charlotte. No, not alone. You are happy enough with me. वो कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो शॉर्लेट, तुम अकेली नहीं हो, यू आर हैप्पी इनफ विद मी, तुम आरंट यू, कि तुम मेरे साथ खुश हो, क्या तुम खुश नहीं हो, यू आर ओनली ब्रदर, कि मैं तुम्हारा अकेला तन्हा भाई, इकलौता भाई हूँ, यू आर ओनली ब्रदर, और तुम मेरे साथ रह रही हो, तो क्या खुश नहीं हो मेरे साथ। मिसेस मेल्टन, यू आर नॉट अ वेरी गुड सब्सटीट्यूट फॉर सन हेनरी, कि तुम एक बेटे के लिए मुतबादिल नहीं हो सकते हेनरी, यानी मेरा बेटा था, उसको मैंने खो दिया है, तो अब उसको मैं याद करती हूँ, तो तुम मेरे बेटे की, तुम्हारा रिश्ता अलग है भाई का, लेकिन बेटे की जगह मुतबादिल तो नहीं हो सकता तुम्हारा रिश्ता। कॉरी, वेल नो आई सपोज, बट स्टिल देयर इज नो नीड फॉर डिस्पेयर, लेकिन वो कहते हैं कि अभी भी मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन मायूसी की अभी भी ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेल यू अबाउट माई इन्वेंशन, आओ मैं तुम्हें अपनी इन्वेंशन, अपने ईजाद के बारे में बताता हूँ। ही पुट्स हिज कप डाउन एंड प्रिपेयर्स टू एक्सप्लेन, वो अपना कप नीचे रखता है और फिर अब वो एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हो जाता है, उस चीज़ को बयान करने के लिए। मिसेस मेल्टन, विल यू हैव सम मोर टी, कि मिसेस मेल्टन, क्या आप, मिसेस मेल्टन उससे पूछे कि क्या तुम मज़ीद चाय लेना पसंद करोगे। ऑलराइट, सो यहाँ से नेक्स्ट पेज पे, कोरी, नो थैंक्स, कोरी कहता है कि नहीं शुक्रिया। नाउ शार्लेट, व्हेन आई से दैट वॉर ऑट टू बी रिवोल्यूशनाइज्ड, शार्लेट, जब मैं कहता हूँ कि जंग में इनकलाब आना चाहिए, यानी जो जंग जिस तरह से लड़ी जाती है उस चीज़ का कह रहा है, कि पहले जैसे तीर तलवार से जंग लड़ी जाती थी, तो अब देखें दुनिया कितनी मॉडर्नाइज हो गई है। तो अब वो कहता है कि इससे भी मज़ीद आगे हमें जाना चाहिए, रेवोल्यूशन इसमें आना चाहिए। तो जब मैं ये कहता हूँ कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, या जंग लड़ने के जो तरीके हैं वो रिवोल्यूशनाइज होने चाहिए, ऑट का मतलब होने चाहिए, आई मीन दैट इट ऑट टू बी मेड मोर एक्सपीडिशियस। तो मेरा मेरा ये मतलब है कि इसको मज़ीद तेज़ रफ्तार बनाया जाए, यानी जंग जब मैं कहता हूँ कि रिवोल्यूशनाइज हो, उसमें इनकलाब आए, तो ये मेरा मतलब नहीं है कि जंग ख़त्म हो जाए, जंग का खात्मा हो जाए जैसे तुम सोच रही हो। मेरा मतलब ये है कि जंग पहले से कहीं तेज़ रफ्तार हो जाए, जहाँ पे 5-5 साल लगते थे जंग लड़ने में, वहाँ पे 5 हफ्ते लगें, 5 महीनों में जंग ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन होगा कि ऐसे में टूल, ऐसे बॉम्ब, ऐसी चीज़ें बना सकूँ जिससे बस वो मिनटों, सालों की जंग हफ्तों में और मिनटों में ख़त्म हो जाए, ठीक है। The war we have just had lasted for a ridiculous period. The war we have just had
वो जंग जो अभी अभी हुई है, यानी वर्ल्ड वॉर वन की बात कर रहे हैं, ये 1919 में प्ले स्टार्ट होता है सेटिंग, तो 1918 में जो जंग ख़त्म हुई 1918 में, उसकी वर्ल्ड वॉर वन की बात कर रहे हैं कि जंग जो अभी हालिया दिनों में हुई है, हैड लास्टेड, वो जारी रही है फॉर रिडिकुलस पीरियड, एक मुजाहिका हैज़ दौरानिए के लिए, यानी बहुत लंबे अरसे के लिए, कि एक तरह का रेडिक्यूल कर रहा है जंग को कि इतने लंबे अरसे कैसे जंग रह सकती है, 4-4 5-5 साल तक लोग लड़ते रहे हैं, ठीक है। 5 years और नियरली 5 years, 5 साल या तकरीबन 5 साल, perfectly prosperous, preposterous, perfectly preposterous, ये मुकम्मल तौर पर अहमकाना बात है, यानी कौन ऐसा सोच सकता है कि 5 साल तक जंग जारी रही है। इट ought not to have lasted more than 5 weeks, इस जंग को 5 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए था, यानी मैं ऐसी इन्वेंशन कर रहा हूँ कि ये 5 साल की जंग 5 हफ्तों पे आ जाए और जल्दी से जंग ख़त्म हो जाए। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ meant बाय द टर्म रेवोल्यूशनाइज वॉर। सो रेवोल्यूशनाइज वॉर का मतलब ये है कि ऐसे टूल्स बनाए जाएं दैट मे रिस्ट्रिक्ट द लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ वॉर, ठीक है। तो वॉर की ड्यूरेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो टूल्स बनाए जाएं उनको हम कहते हैं रेवोल्यूशनाइज वॉर। Okay, students. So, Mrs. Meldon, have you invented a means of restricting the duration of wars? अब Mrs. Meldon कहती है कि क्या तुमने ऐसा ज़रिया तरीका इजाद किया है कि जो जंग को महदूद करेगा, ठीक है, जंग की जो दौरानिया है उसको महदूद करेगा। तो कॉरी कहता है, वेल यस, आई थिंक यू माइट पुट इट लाइक दैट, कि तुम इस बारे इस तरह से भी कह सकती हो, यानी मैंने वाकई ऐसा ही एक तरीका इन्वेंट किया है जो जंग की दौरानियों को महदूद करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कहता है कि अब तुम इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि तुमने भी ठीक कहा है कि जंग को महदूद करने का, उसके टाइम फ्रेम को, ड्यूरेशन को महदूद करने का, दौरानिए को महदूद करने का एक तरीका मैंने बनाया है। व्हाट द कॉम्पिटेंट्स ought to aim at in war is to get the first blow in so hard that the other side immediately succumbs to it। कहते हैं कि कॉम्पिटेंट्स या फाइटर्स जो हैं, लड़ाके जो जंगजू जो हैं, उनका मकसद जंग में ये होना चाहिए इज टू गेट द फर्स्ट ब्लो इन सो हार्ड, कि वो पहला ही हमला, पहली ज़रब इतनी सख्त लगाएं दैट द अदर साइड इमीडिएटली सकम्स टू इट, कि दूसरी साइड इसको, इसके जख्मों को ताब ना ला सके, दूसरी साइड इसको, इसमें मुजाहमत ना कर सके। सकम का मतलब होता है फेल टू रेजिस्ट, मुजाहमत ना कर सकना, तो दूसरी साइड को संभलने का मौका ही ना मिले। ताकि मिसेस मेल्टन, आई सी, मिसेस मेल्टन में समझ गए, और दैट मीन्स दैट द वेपन्स ऑफ वॉर मस्ट बी मेड इमेजरेबली मोर हॉरिबल एंड डिवास्टेटिंग देन बाय नाउ देन दे नाउ आर। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो वेपन्स हैं वॉर के, जंग के, जो असलहा जो इस्तेमाल होता है उसको हैरान कुन हद तक, इमेजरेबली का मतलब है हैरान कुन, मोर हॉरेबल ज़्यादा खौफनाक बनाया जाए, एंड डेवस्टेटिंग और ज़्यादा तबाहकुन बनाया जाए, देन दे नाउ आर, जैसा कि अब वो हैं, यानी अब से मज़ीद तबाहकुन खौफनाक उनको बनाया जाए। मिसेस मेल्टन, मोर हॉरेबल, इज़ दैट पॉसिबल। मिसेस मेल्टन पूछती है कि इससे भी ज़्यादा खौफनाक जैसे कि अब है, क्या ये मुमकिन है। प्रोफेसर कोरी कहता है कि येस, ओ येस, वी हैवंट येट रीच्ड द लिमिट्स ऑफ हॉरर। वो कहता है कि अभी तो हम उसकी जो जंग का जो खौफ और दहशत है उसकी हदूद तक नहीं पहुँचे, येट, अभी, रीच, पहुँचना, लिमिट्स, हदूद, हॉरर कहते हैं खौफ या दहशत को, इन वॉर, कि जंग का जो खौफ या दहशत है उसकी हदूद तक अभी नहीं पहुँचा, अभी और आगे हमने जाना है। ओ डियर नो, ओ डियर मीनो, कि मेरी प्यारी, हम अभी तक नहीं पहुँचे। सो यहाँ पे एक और मैंने आपके लिए हैज़ अ क्वेश्चन कि व्हाट सीम्स टू बी हॉरेबल टू बोथ कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन आपने माइंड में रखना है, जब ये हम अगला थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि दोनों कैरेक्टर्स के लिए क्या चीज़ हॉरेबल है। प्रोफेसर का तो हमें पता चल गया कि अभी का जो वेपन जंग में इस्तेमाल होते हैं वो उसके लिए हॉरेबल नहीं है, वो चाहता है कि मज़ीद इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म के वेपन्स बनाए जाएँ जो कि ज़्यादा हॉरेबल हों और जंग का खात्मा चंद हफ्तों में हो जाए, तो वो हॉरेबल है। लेकिन व्हाट इज़ हॉरेबल टू मिसेस मेल्टन, ये अब थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि मिसेस मेल्टन के नज़दीक क्या चीज़ हॉरेबल है, क्या वो भी यही सोचती है। तो मिसेस मेल्टन, माई सन वॉज 19, हेनरी, एंड ही वॉज किल्ड इन अ फाइट ऑफ विच ही न्यू वेरी लिटिल। वो कहती है कि मेरा बेटा 19 साल का था और वो एक जंग में मारा गया, एक लड़ाई में मारा गया, ऑफ विच ही न्यू वेरी लिटिल, जिसके बारे में बहुत कम जानता था। दैट सीम्स टू मी अ हॉरेबल थिंग, और ये मुझे खौफनाक चीज़ लगती है, ठीक है। यानी तुम्हारे लिए खौफनाक चीज़ ये है कि तुम अभी जो वेपन्स हैं इससे भी ज़्यादा खौफनाक वेपन्स बना के, ये चीज़ तुम्हें हॉरेबल लगती है, और मुझे हॉरेबल ये लगता है कि मेरा बेटा मारा गया है, चाहे वो जिन भी वेपन से मारा गया है, चाहे वो एक तीर से ही मरा है, लेकिन मेरे लिए उसकी डेथ ही हॉरेबल है। इससे ज़्यादा और हॉरेबल चीज़ कोई हो नहीं सकती मेरे लिए। तो देखें, एक तरफ साइंटिफिक माइंड
और एक तरफ सेंटिमेंटल इमोशनल माइंड है, एक माँ है जो अपने बच्चे को के गम में है। तो दोनों कैरेक्टर्स को आप एनालिसिस साथ साथ खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। कोरी, ओ अ मदर्स फीलिंग, कोरी अब कहते हैं कि हाँ एक माँ के एहसास, ऑफ कोर्स, बट लुक एट द मैटर फ्रॉम अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू, कि तुम तो एक माँ की तरह सोच रही हो कि तुम्हारा बेटा मर गया तो यही चीज़ हॉरेबल है, खौफनाक है। लेकिन इस मामले को एक वसी ब्रॉड वसी नुक्ता नज़र से देखो, पॉइंट ऑफ व्यू वसी नुक्ता नज़र से देखो, पुट योर ओन फीलिंग्स असाइड, अपनी एहसासात को एक तरफ रखो, उनको उनसे हट के उनसे बालातर होकर सोचो। मिसेस मेलन कहती हैं कि आई कांट डू दैट हेनरी, मैं ये नहीं कर सकती। द होल वॉर फॉर मी कम्स डाउन टू दिस वन थिंग, दैट माई सन, वो कहती है कि पूरी जंग, द होल वॉर, पूरी जंग कम्स डाउन टू दिस वन थिंग, मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है पूरी जंग में। पूरी जंग का अगर खलासा में बयान करूँ तो वो एक ही चीज़ की तरफ आता है। क्या चीज़? दैट माई सन, कि मेरा बेटा, अ बॉय न्यू फ्रॉम स्कूल, जो कि अभी एक बच्चा है, स्कूल से नया निकला है, वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी, वो मुझसे दूर ले, उसको मुझसे दूर किया गया, उसको मारा गया। जस्ट when his life was beginning to open out and killed, अभी जबकि उसकी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, बिल्कुल अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी, तो अभी इसी उम्र में उसको मारा गया, किल्ड, और उसको मारा गया। आई एम नॉट अ क्लेवर वुमन हेनरी, मैं एक होशियार खातून नहीं हूँ हेनरी, यानी तुम ये कह रहे हो कि इससे हट के मैं ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कि हॉरेबल चीज़ क्या होती है, तो मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, मेरे लिए तो सिर्फ यही है कि मेरा बेटा जो कि अभी नौजवान था, अभी वो अपनी ज़िंदगी शुरू की थी उसने, उसको मारा गया है। आई कैन ओनली फील थिंग्स एज दे टच मी, एंड वो कहती है कि मैं सिर्फ चीज़ों को इस तरीके से ही महसूस कर सकती हूँ जैसे कि वो मेरे साथ पेश आती हैं, जैसे वो टच करती हैं मेरे दिल को, ठीक है। जैसे वो मेरे सामने आती हैं, जैसे पेश आती हैं मेरे साथ, तो मैं उनको उसी तरह से फील करती हूँ। मेरा और कोई इस तरह का नहीं है, कोई साइंटिफिक माइंड नहीं है, इतना ब्रॉडर माइंड नहीं है, इतना क्लेवर मैं हूँ नहीं कि मैं चीज़ों को और पर्सपेक्टिव से भी देखूँ, ठीक है। एडी वॉज माई ओनली सन, एडी मेरा अकलौता बेटा था। माई डार्लिंग, मेरा प्यारा बेटा। माई हर्ट्स जॉय, मेरे दिल की खुशी। आई एक्सपेक्टेड सो मच फ्रॉम हिम एंड ही इज़ गॉन, और मैं उससे बहुत तवक्को करती थी, और एंड ही इज़ गॉन, और अब वो मर चुका है। एंड देयर इज़ नथिंग, 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 और अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। कॉरी बीइंग वेरी जेंटल विद हर, अब कोरी उसको थोड़ी सी हमदर्दी, उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए, यस आई नो शार्लेट, बाई बट यू रियली ऑट नॉट टू ड्वेल टू मच ऑन योर सोरो, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ शार्लेट, लेकिन तुम इस गम में, अब इस दुख में ज़्यादा खोना नहीं है तुमने, इसमें ही हर वक्त तुम खो चुकी हो, तो तुम्हें ये और तकलीफ देगा। इट इज़ंट गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। यू ऑट टू टेक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें एक वसी नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ अ स्टेटमैन, अब वो कहते हैं कि वसी नुक्ता नज़र से इस तरह चीज़ों को देखो कि अपने आप को एक सियासतदान समझो। इमेजिन योर सेल्फ अ स्टेट्समैन, यानी जो एक मुल्क को चला रहा है, तो अपने आप को इस तरह से, एक माँ की तरह नहीं। अगर तुम माँ हो, तो तुम अगर मुल्क को चलाने वाली, इस मुल्क को चलाने वाली होती, जो इस जंग में अ, अभी है जो मुल्क, अगर तुम उस मुल्क की सरबराह होती, तो तुम क्या यही, तुम्हारा बेटा मर जाता तो यही इजहार करती, तुम इसी तरह से दुख में होती, क्या तुम मुल्क को नहीं चलाती? तो इस तरह से वो कहते हैं ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो चीज़ों को। तो मिसेस मेल्टन कहती है कि इफ़ एडी हैड बीन अ स्टेट्समैन, वो कहती है कि अगर एडी एक स्टेट्समैन होता, एक सियासतदान होता, एक मुल्क का कोई बड़ा होता, ही वुड नॉट हैव गॉन टू द वॉर, तो वो जंग में ना जाता। ही वुड हैव कंपेल्ड सम अदर पर्सन टू गो, वो किसी और आदमी को मजबूर करता कि वो जंग में जाए। यानी वो कहती है कि जैसे हमने स्टार्ट में भी देखा था कि जो मुल्क के जो बड़े होते हैं, जो फोर्सेस में या कंट्री में जो स्टेट्समैन, बाकी वो खुद तो जंग में नहीं जाते, वो तो आम सिपाहियों को, आम बच्चों को जंग में भेजते हैं, सोल्जर्स को भेजते हैं। इसी तरह किसी माँ के बच्चों को जो कि आम से सिपाही होते हैं, उनको भेजते हैं बॉर्डर लाइन्स पे, खुद तो वो बॉर्डर पे नहीं जाते। तो वो कहती है कि अगर वो स्टेट्समैन होता तो वो खुद जंग में ना जाता। कोरी, ओह नाउ डोंट बी बिटर, कोरी कहता है कि आप इतनी तल्ख ना बनो तुम। शार्लेट, डोंट बी बिटर, ज़्यादा तल्ख ना बनो। मिसेस मेल्टन, माय डियर हेनरी, आई एम बियॉन्ड बीइंग बिटर, मिसेस मेल्टन कहती है कि मेरे प्यारे हेनरी, मैं तलखी से बहुत आगे हूँ। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट दिस प्ले इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ इज दिस प्ले अ क्रिटिसिज्म ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, तो यू कैन गिव एन एग्जांपल फ्रॉम दिस, दैट द स्टेटमैन एंड the people who are in higher ranks, they sit safe and secure, um, and they don't go to the border lines to fight the enemy. They always send some other person, some soldiers to fight
and they themselves, they don't uh, care much about the war. All right. So इस तरह से ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, एक तनकीद भी है। वो कहती है कि मैं आई एम बियॉन्ड बीइंग बिटर, मैं तल्ख होने से बहुत आगे हूँ। डू यू नो व्हाट आई डिस्कवर टुडे, क्या तुम्हें पता है कि आज मैंने क्या दरियाफ्त किया है। और ये जो डिस्कवरी है आज की स्टूडेंट्स, ये एक और रीज़न है मिसेस मेल्टन की सैडनेस की। मिसेस मेल्टन की सैडनेस की पहली रीज़न ये है कि मिसेस मेल्टन के आज उसकी एनिवर्सरी है एडी की, इस वजह से वो दुख में है। और दूसरी वजह ये है कि जब वो स्टेशन से वापस आ रही थी तो उसको रास्ते में कुछ ऐसी बात पता चली है जिसकी वजह से उसके दुख मजीद ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि ये क्या बात है। कोरी नो, कोरी कहता है कि मुझे नहीं पता। मिसेस मेल्टन, you know I have never really known how Eddie died, I found out today। मिसेस मेल्टन कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एडी की डेथ कैसे हुई। यानी ये तो पता है कि एडी मर चुका है, लेकिन कैसे मरा है ये नहीं पता था। आई फाउंड आउट टुडे, और मुझे आज पता चला है। कोरी कहता है आई विश यू वुडंट थिंक सो मच अबाउट इट, कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो। मिसेस मेल्टन विद सडन पैशन, अचानक से जज्बाती होते हुए, जज्बाती अंदाज में, आई मस्ट थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट, और ये सोच आने से मैं रोक नहीं सकती अपने आप को। यानी मुझे हर वक्त ये सोच आती है और मैं रोक नहीं सकती अपने आप को। आई मेट अ यंग मैन इज अनदर कैरेक्टर हेयर। कहती कि मैं एक नौजवान लड़के से मिली, एक नौजवान आदमी से, इन द टाउन, इस गांव में, कस्बे में, टुडे आज, हु हैड बीन इन द सेम बटालियन एज एडी, और वो भी उसी बटालियन में था। यानी वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसको बटालियन कहते हैं, जिसमें एडी भी था, जिसमें एडी की डेथ हो चुकी थी, और वो उसी बटालियन में था। एंड ही टोल्ड मी अबाउट इट, और उसने मुझे बताया कि एडी किस तरह से उसकी डेथ हुई है। पुअर लेड, बेचारा लड़का। अब बेचारा लड़का उसी यंग मैन की बात करिए जिसने इसको स्टोरी बताई है। इट स्लिप्ड आउट बिफोर ही रियलाइज दैट आई हैडंट नोन बिफोर। इट स्लिप्ड आउट, ये बात उसके मुंह से निकल गई। यानी जो उसने मुझे एडी की डेथ का बताया, ये उसके मुंह से बात निकल गई। वो मुझे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन निकल गई। बिफोर ही रियलाइज, उससे इससे पहले कि उसको पता चले, दैट आई हैडंट नोन बिफोर, कि मुझे पहले नहीं पता था। यानी मुझे एडी की डेथ का पहले नहीं पता था कि एडी किस तरह से मरा। ये तो पता है कि एडी मर चुका है, लेकिन किस तरह से मरा था ये नहीं पता था। तो वो ये समझा कि मुझे शायद पहले से पता था, तो उसने ये बात बता दी। लेकिन जब उसने बात बताई और मेरे दुख को देख के वो समझ गया कि मुझे पहले ये बात नहीं पता थी, तो इसलिए कह रही है कि पुअर लेड। ठीक है। सो एडी की डेथ का उसने बताया कि किस तरह से एडी मरा है, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से एडी की डेथ हुई है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी है कि एडी की डेथ किस तरह से हुई है, हाउ वाज एडी किल्ड, तो ये आपने गौर से सुनना है। ठीक है। Corey, people often talk so much about the war, much better forget about it। कोरी कहता है कि लोगों को बेहतर ये है कि वो जंग के बारे में ज़्यादा ना बात करें, उनको उसको भूल जाना चाहिए। मिसेस मेल्टन के अपने आप को रिकवर करते हुए, अपने आप को संभालते हुए कहती है, यू रिमेंबर द सीईओ ऑफ द बटालियन रोड टू मी एंड सेड दैट एडी हैड बीन किल्ड बाय अ पीस ऑफ शेल। क्या तुम्हें याद है कि वो बटालियन का जो हेड था, सीईओ जो था, उसने मुझे एक खत लिख के, या एक चिट्ठी लिख के मुझे बताया था, एंड सेड दैट एडी हैड बीन किल्ड, ओके, एडी मर चुका है, बाय अ पीस ऑफ शेल, गोले का एक टुकड़ा आके उसको लगा है, एंड दैट ही हैड बीन बेरीड बिहाइंड द लाइन समवेयर, और उसको दफन किया गया है बॉर्डर, लाइन का मतलब बॉर्डर, ये सरहद, बिहाइंड द बॉर्डर, बॉर्डर के पीछे कहीं किसी जगह में दफन किया गया है, जहाँ पे वो मर चुका था उधर ही दफन किया गया। ठीक है। यस आई रिमेंबर, कोरी कहते हैं कि हाँ मुझे खत याद है। मिसेस मेल्टन कहती है, दैट कम्फर्टेड मी वेरी मच, कि उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली थी। इट मेड थिंग्स ईजियर टू थिंक दैट ही वॉजंट म्यूटिलेटेड। ये इस बात से मुझे तसल्ली हुई थी, इट मेड थिंग्स ईजियर, इसने मुझे बहुत सारी चीज़ों को आसान बना दिया था, कि ही वॉजंट म्यूटिलेटेड, कि उसके अज़ा नहीं काटे गए, उसका जिस्म अभी भी सही सलामत था और उसको दफनाया गया है। तो ये बात मेरे लिए तसल्ली बख्श थी, और मुझे इत्मीनान हुआ ये सुन के। दैट इवन व्हेन ही वाज किल्ड ही वाज स्टिल माय डियर एंड ब्यूटीफुल बॉय, कि जब वो मर चुका था लेकिन फिर भी वो मेरा प्यारा और खूबसूरत बेटा था। उसके अज़ाब जिस्म के मुकम्मल थे, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी मिसिंग नहीं था, उसका जिस्म मुकम्मल था। और सोल्जर, वो एक सिपाही की तरह मरा है, बेरीड बाय सोल्जर्स, और सिपाहियों ने ही उसको दफन किया है, इन अ सोल्जर्स ग्रेव, और एक सिपाही की कब्र में। तो ये चीज़ जब मैं सोचती थी तो मेरे लिए बहुत कंफर्ट और तसल्ली का बायस होती थी। बट ही वॉजंट बेरीड हेनरी, लेकिन हेनरी वो तो दफन नहीं किया गया। वॉजंट बेरीड, अब हेनरी पूछता है कि क्या वो दफन नहीं किया गया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने क्वेश्चन माइंड में रखना है कि हाउ वाज एडी किल्ड। ठीक है। मिसेस मेल्टन, नो, देयर वाज नथिंग टू बैरी, द शेल केम एंड देयर वाज नथिंग। कहती है कि कुछ भी नहीं था दफनाने के लिए, तो था ही कुछ नहीं। द शेल केम, वो जो गोला आया, एंड देयर वाज नथिंग, और वो सब खत्म हो चुके थे।
उसको उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट भी मिला ही नहीं है, उसको कैसे दफनाते कि उस वो तो मुकम्मल तबाह हो गया उस शेल के साथ। दे आर साइलेंट फॉर अ मोमेंट और टू, वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहे। डोंट यू थिंक दैट इज हॉरिबल हेनरी? अब तुम कहते हो कि तुम जंग में, हेनरी को कह रही है कि तुम ऐसे टूल, ऐसे वेपन बनाओगे कि जो जंग को हफ्तों में ख़त्म करेंगे और मजीद हॉरेबल बनाएंगे। सो डोंट यू थिंक कि ये चीज़ हॉरेबल है, खौफनाक है? मेरे लिए तो सबसे खौफनाक यही है कि मेरे बेटे को दफन भी नहीं किया गया, उसके जिस्म का कोई टुकड़ा भी नहीं मिला, और ये मेरे लिए सबसे खौफनाक चीज़ है। क्या तुम नहीं समझते कि इससे भी खौफनाक कोई और चीज़ होगी? क्या तुम ये समझते हो? देयर वाज नो डिसेंसी इन हिज डेथ, उसकी मौत में कोई शाइस्तगी नहीं थी। वो एक सिपाही की तरह नहीं मरा, बल्कि उसके तो जिस्म के हिस्से ही नहीं मिले, उसका तो कोई फ्यूनरल भी नहीं हुआ, कोई जनाजा भी नहीं हुआ। वो तो शाइस्तगी के साथ नहीं मरा। ओ माय गॉड, यू टेल मी टू टेक अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट। और ओ मेरे खुदाया, तुम कहते हो कि मैं इस चीज़ को एक वसी नुक्ता नज़र से देखूं। माय सन, दे हैड बीन इन अ लिटिल शैलो ट्रेंच। अब अपने बेटे और बाकी जो सिपाही उसके साथ थे उनकी बात करिए। दे हैड बीन अ लिटिल शैलो ट्रेंच, वो एक तंग हंदक में थे। ट्रेंच, हंदक। एडी एंड हिज मैन, एडी और उसके सोल्जर्स, मैन सोल्जर्स, सिटिंग देयर फॉर 8 days एंड नाइट्स, वहाँ पे 8 दिन और 8 रात तक बैठे रहे। वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, और इंतजार करते रहे। एंड देन अ शेल केम right into the middle of a group of them and destroyed them। और फिर एक बारूद का गोला आया और उनके दरमियान में आके गिरा और सबको तबाह कर दिया। utterly destroyed them, मुकम्मल तौर पर सबको तबाह कर दिया। 5 of them, वो पांचों के पांचों मर गए। नथिंग लेफ्ट, और कुछ भी बाकी नहीं रहा। She sits back in her chair and both of them are silent। Then the professor goes to his table and sits down before his paper and retorts। वो दोनों खामोशी से चेयर में बैठे रहे और फिर थोड़ी देर बाद प्रोफेसर उठ के अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ और अपने रिटॉर्ट की तरफ दोबारा चला गया। So that's it for today, students. I hope you enjoyed today's lecture. Okay, so in order to sum up today's lecture, here are the few important points जो अपने माइंड में रखने हैं। In today's lecture we discussed that Professor Henry aims at revolutionizing warfare। हमने देखा कि प्रोफेसर हेनरी जो है वॉरफेयर को रिवोल्यूशनाइज करने की बातें कर रहा है। And we can also see that there is a contrast between two characters, and that is shown through um, the scientific work of a scientist। On one hand, एक साइंसदान जो scientific work कर रहा है, and on the other hand, feelings of a mother। So there is a great contrast between two characters, and I have also explained it during the lecture। And then there is another point, that what is meant by term revolutionize war, कि इस टर्म का मतलब क्या है। सो इट मीन्स इन्वेंशन ऑफ मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट ड्यूरेशन ऑफ वॉर, कि ऐसी जंग जो कि जंग के दौरानियों को महदूद करे, उसको रिवोल्यूशनाइज वॉर। जंग के दौरानियों को महदूद करने का ये मतलब नहीं है कि जंग का खात्मा करे, बल्कि जंग में ऐसे डेडली वेपन्स बनाए जाएं जो जंग को बहुत कम अरसे में ख़त्म कर सकें। द वन हु ब्लोज फर्स्ट विल विन द वॉर। और दूसरा इसका आइडिया ये है कि वो साइड जो कि पहले हमला करेगी वही जंग जीतेगी, यानी दूसरे को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरे के ऊपर एटॉमिक बम गिरा देंगे तो दूसरा मुकम्मल तबाह हो जाएगा, वो दोबारा आगे से अटैक करने के काबिल नहीं रहेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेसर हेनरी। व्हाट सीम्स टू बी हॉरेबल टू बोथ द कैरेक्टर्स, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि दोनों कैरेक्टर के नज़दीक हॉरेबल क्या चीज़ है। तो प्रोफेसर हेनरी के लिए हॉरेबल ये है कि इमेजरेबल मीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट विल मेक वॉर मोर हॉरेबल। तो ये उसके लिए हॉरेबल है। एंड टू मिसेस मेल्डन, डेथ ऑफ हर सन इज मोर हॉरेबल देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अ बॉय न्यू फ्रॉम स्कूल, हर ओनली एंड डार्लिंग सन हु न्यू वेरी लिटिल ऑफ द वॉर was taken away from her। So this is the most horrible thing to Mrs. Meldon in the world। ठीक है। And then we also saw another important point, how is the play criticism on political system। And we also saw the term statesman, uh, those who are sitting safe and secure and they send other people, other soldiers on the borderline to fight war for them। And then Mrs. Meldon came to know how Eddie died in war from a young man। तो ये सारे main points हमने discuss किए। So students, your homework on the basis of this lecture is two questions basically। First one is how was Eddie killed, या आपने describe करना है कि Eddie किस तरह से मारा गया। And the second question is describe Professor Corey's view about war। and Professor Corey के view क्या है जंग के बारे में, war के बारे में। These are two questions that are in your exercise, in your from your comprehension questions of this unit। So that's it from today's lecture। Thank you so much for watching। Take care। Allah Hafiz।